وہ حق کا ہوگا، میرٹ کا ہوگا اور جلد اللہ رب العزت رہے گا۔ جیل میں شوکت بھائی جو اسیران موجود ہیں ان کے لیے تو بہت زیادہ مشکلات ہیں، وہ تو اتنے زیادہ پریشان ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی کارروائی نہیں ہو رہی۔ صاف ظاہر ہے جو بندہ بھی جیل کے اندر ہے اس کے لیے پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، پھر اس کے لیے زیادہ مشکلات ہیں جس نے کوئی جرم نہیں کیا، کوئی گناہ نہیں کیا۔ وہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کوئی ظاہری طور پہ جرم نہیں کیا، زیادتی نہیں کی، اس ملک کو، قوم کی املاک کو نقصان نہیں پہنچایا، آئین اور قانون کی حدود کو نہیں پھلانگا۔ تو صاف ظاہر ہے جس نے جرم نہیں کیا اور وہ بغیر جرم کے جعلی سزا ہوا ہے تو اس کو تو یقیناً تکلیف ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا اس کے اندر بہتر جائے گی۔ جب بھی ملاقات ہوتی ہے نا اسیران سے، وہ کہتے ہیں کہ ہر پیشی پہ ہمیں مطمئن کیا جاتا ہے کہ یہ پیشی جو ہے نا اس پہ اگلی پیشی پہ آپ رہائی ہو جائے گی، دوبارہ پیشی پہ پیشی 9 ماہ سے آگے گزر گئے ہیں، تو کیا یہ ابھی کوئی مطمئن ہے؟ دیکھیں رہائی کا فیصلہ ہم نے نہیں کرنا، یہ فیصلہ کیس کو دیکھتے ہوئے، اس کے حقائق کو دیکھتے ہوئے وکلاء کی بحث کے مطابق ایک فیصلہ ہونا ہے اور وہ فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے۔ مگر ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو موجودہ نظام ہے یہ غریب کو ریلیف دینے والا نظام نہیں ہے۔ اس بات کے اندر ہم یہ 100% متفق ہیں، ان کی پریشانی حق پہ جانب ہے۔ ہر پیشی کو ان کو بتایا جاتا ہے کہ کارروائی ہوگی، مگر 3-4 پیشوں کے بعد بینچ تبدیل، پھر 3-4 پیشوں کے بعد بینچ تبدیل، پھر بینچ تبدیل، اور یہ میں سمجھتا ہوں ان کی وجہ یہ ہے اور ان کا قصور یہ ہے کہ وہ پرامن ہے، ان کا قصور یہ ہے کہ وہ آئین اور قانون کو فالو کرتے ہیں، ان کا قصور یہ ہے کہ وہ حق کے طلبگار ہیں، ان کا قصور یہ ہے کہ وہ پاکستان سے آئین کے نام پر غیر آئینیت اور قانون کے نام پر لاقانونیت کے خلاف نکلے تھے۔ ان کا قصور یہ ہے کہ وہ اس ملک و قوم کے غریب، مظلوم، مجبور، مقہور، سادہ، پسے ہوئے اور مظلوم طبقات کے حقوق کی بحالی کی جنگ کے لیے نکلے تھے۔ ان کا قصور یہ ہے کہ وہ اس ملک و قوم کو قائد اعظم اور علامہ اقبال کا حقیقی ملک اور پاکستان بنانے کے لیے نکلے تھے، ان کے خواب کی تکمیل کے لیے نکلے تھے۔ ان کا قصور یہ ہے کہ وہ آئین کے آرٹیکل 38 جو کہتا ہے روٹی، کپڑا، مکان، تعلیم، عدل و انصاف، مساوات، the state shall provide each and every citizens of the پاکستان، یہ بیسک نیسیسریز ہیں جو آئین قانون مفت فراہم کرے ہر شہری کو، اور یہاں پیسے کے ساتھ بھی نہیں مل رہی۔ وہ اس حق کی خاطر نکلے تھے، ان کا قصور یہ ہے۔ عدالتوں کو گالیاں نہیں دیتے، ان کا قصور یہ ہے۔ نظام کو برا بلا نہیں کہتے، ان کا قصور یہ ہے۔ سرعام ججز کے نام لے کر جی ٹی روڈ پر جس طرح ہمارے قاتل اعظم نے عدلیہ پر بکواسات کی اور ننگا کیا اور ان کو گالیاں دی، اور اس نے اپنے اندر کی بھڑاس نکالی اور اس نے پاکستان کے اداروں کے خلاف غلیظ گفتگو کی، ان کا قصور یہ ہے کہ وہ پرامن ہے۔ ان کا قصور یہ ہے کہ وہ آئین اور قانون کی حدود و قیود کے اندر رہ کے اپنی ذمہ داریاں اور اپنا جد و جہد اور حق کو آگے بڑھا رہے تھے۔ وہ اس قصور کی ان کو سزا مل رہی ہے۔ یہ نظام ان کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، مگر ہم مطمئن ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ میرٹ پہ کارروائی ہوگی اور جو بھی کارروائی ہوگی ٹھیک ہوگی۔ آپ کی بات بالکل بجائے، آپ نے کہا اس نظام کو تبدیل کرنے کے لیے ہم نکلے تھے، نظام کے لیے نکلے تھے، حکومت کو ہم نے سپورٹ کیا تھا، کیا کوئی حکومت بھی آپ کو سپورٹ کر رہی ہے؟ کس حد تک انہوں نے آپ کو دیکھیں، حکومت کو مرکز کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں کیا گیا تھا، یہ مقامی طور پر حلقوں کے اندر یہ فیصلہ جماعت کا تھا، قیادت کا نہیں تھا۔ قیادت نے ایک جملہ بھی سپورٹ کا نہیں دیا، تو اس لیے قیادت تو انہیں کچھ کہنے کی مجاز نہیں ہے۔ رہ گئی بات جماعت نے جو سپورٹ کی، وہ اخلاقی طور پہ سپورٹ کی، کیونکہ عمران خان کا نعرہ تھا تبدیلی کا، عمران خان کا نعرہ تھا آئین اور قانون کی بحالی کا، عمران خان کا نعرہ تھا ہر طرف انصاف کے بول بالا کا۔ مگر اس وقت جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ عمران خان کی روح کو اس نظام نے قبض کر کے رکھ دیا ہے۔ عمران خان جو الیکشن سے پہلے ہر جلسے کے اندر بات کرتا تھا، وہ جی سانے ماڈل ٹاؤن کہاں گیا، وہ جی لوگوں کو گولیاں ماری گئیں، اس مقدمے کے لیے صرف 1 مہینہ چاہیے۔ مگر اب یہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ وہ عمران خان جو کہتا تھا 1 مہینے کے اندر اندر اس کا انصاف ہو جانا ہے، سر عام 100 چینلوں نے دکھایا ہے، وہ عمران خان اس سانے ماڈل ٹاؤن پہ آج گنگ کیوں ہے، اس کی زبان خاموش کیوں ہے؟ الیکشن سے پہلے ہر جلسے کے اندر سانے ماڈل ٹاؤن، اور اب الیکشن کے بعد 2.25 سال ہو گئے، اس کی زبان سل گئی ہے۔ یہ کون ہے طاقتور جنہوں نے اس کی زبان پہ اپنے منہ کے ساتھ ایسا گھسا مارا ہے کہ وہ اس کی جرات نہیں ہے کہ وہ سانے ماڈل ٹاؤن کا نام لے، وہ مظلوم مقتولین کو انصاف دلانے کی بات کرے، اور اگر ان کے اوپر جے آئی ٹی بنتی ہے تو اس جے آئی ٹی کو پھر معطل کر دیا جاتا ہے۔ سپریم کورٹ کی ڈائریکشن پر بننے والی جے آئی ٹی معطل ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے کچھ ایسے طاقتور ہاتھ ہیں جن کے قبضے اور نرغے میں یہ پورا نظام ہے، اور عمران خان اب ان کی لونڈی بنا ہوا ہے۔ تو عمران خان کی اخلاقی سپورٹ کی تھی، مگر اس وقت عمران خان بھی بے بس نظر آ رہا ہے، اور اشرافیہ، نواز شریف، زرداری، ان کے ہواری، ان کی بینیفیشری اور ان کے سارے چوکیدار، وہ اس وقت اس ملک و قوم کو اپنے نرغے میں لیے ہوئے ہیں، اور اس نظام نے غریب کو نہ پہلے ریلیف دیا نہ اب دیا۔ وہی حال ہے کہ انقلاب آئے، نظام بدلے،
सिस्टम की ततहीर हो, तब लोगों को हुकूक मिलेंगे, इंसाफ होगा, और तब गरीब को इंशाल्लाह इंसाफ भी मिलेगा। अपने हुकूमत की बेबसी का जिक्र किया है और इनकलाब के लिए जज साहब ने 2014 में जो तहरीक चलाई थी, करने के लिए निकले थे शोहदाए मॉडल टाउन के इंसाफ के लिए, उस वक्त से लेकर आज तक असीरान ने जो कुर्बानियाँ दी हैं उनके लिए मरकज़ ने क्या किया है? देखिए, आपका सवाल बड़ा बेजानदार सवाल है। यहाँ जब किसी के ऊपर तकलीफ़ आती है तो हर जमात के अंदर लोग सियासी शहीद भी होते हैं, ज़ख्मी भी होते हैं, जेलों में जाते हैं, कैदोबंद की सहूलतें बर्दाश्त करते हैं। हमने देखा है पाकिस्तान के अंदर हर जमात के कारकुन वो असीर भी हुए, जेलों में भी गए, मगर कोई जमात उनकी पुरसान हाल नहीं बनी, किसी ने उनका आज तक हाल नहीं पूछा। तो ये मैं फ़ख्र के साथ बतौर जिम्मेदार ये बात कर सकता हूँ। और आज ये झंडा वाला के जितने कायदीन भी खड़े हैं और कलूर कोट के, इनकी मौजूदगी में मैं आप ये डॉक्टर महमूदुल हसन मुस्तफ़ी साहब भी खड़े हैं, डॉक्टर मुश्ताक अमान साहब, इनकी मौजूदगी में ये बात कर रहा हूँ। कल भी जब हम मरकज़ गए तो ये बात हुई वहाँ। रब्बे काबा की कसम, जितना फॉलो अप, कारकुनान की कुर्बानियाँ भी बेलौस हैं, कारकुनान की मोहब्बत, और इस मुल्क को कौम के अंदर इनकलाब बर्पा करने के लिए दास्तानें भी अजीम हैं, मगर इस क़यादत की मोहब्बत के साथ उनको जो रिस्पांस की दास्तान है उसका मुकाबला भी पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं मिलता। आप हैरान रह जाएंगे, जितने लोग शहीद हुए, जितने ज़ख्मी हुए, उनके ऊपर जितने अखराजात आए, उनके जितनी बार ऑपरेशन हुए, इलाज हुआ, हत्ता के जो शोहदा हुए उनके आज तक बच्चों की पढ़ाई के अखराजात, उनके A to Z किचन के अखराजात, उनकी बच्चों की फीसें, उनके जुमला मामलात, हत्ता कि उनके घरों के बिल। और अभी कल मरकज़ पे हमें बता रहे थे कि ऐसे कुछ शोहदा भी हैं जिनके बच्चे पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, जिनकी एक एक सेमेस्टर के 70-70 हज़ार तक के अखराजात हैं, वो भी जमात बर्दाश्त कर रही है। और मैं 5-6 साल तक इन मुकदमात को फेस करता रहा, जो बखर के 590 असीरान गिरफ्तार हुए। अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, किसी एक कारकुन और असीर पर एक फोटो कापी का पैसा भी नहीं था। ये सारे अखराजात मिनहाजुल कुरान मरकज़, डॉक्टर ताहिर कादरी और मिनहाजुल कुरान की तंजीमात के उन वजूर डोनर्स ने बर्दाश्त किए, जिनका जीना मरना इस मुल्क को कौम की बेहतरी और फलाह के लिए वक्त है। तो जमात सर पे खड़ी है, जमात कर रही है। अब भी जो जेल में हैं उनके साथ भी जितना हो सकता है, उनकी वफादारियों के मुताबिक तो नहीं, मगर अपनी इस्तादाद से भी बढ़कर उनके लिए माली तौर पे भी इंतजाम किए जा रहे हैं, किचन के मामलात चलाने के लिए भी किए जा रहे हैं। जो उनके बुजुर्ग फौत हुए उनके अखराजात भी बर्दाश्त कर रही है मरकज़। वकला लाखों रुपए के साथ, ये भी अलमिया है इस पाकिस्तान का कि हमारे एक वकील हुआ 1 करोड़ रुपए की फीस लेकर, वो रिटायर जस्टिस था, उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौफीक नहीं दी कि वो हक के साथ केस लड़े, वो बिक गया। उधर से उसने ब्लैंक चेक लिए हुए थे नून लीग से, फिर दूसरा वकील किया, फिर तीसरा वकील, अब चौथा वकील लाहौर के एरिया से हट के किया, क्योंकि लाहौर में ये ताकतवर हैं, ये उनको ख़रीद लेते हैं। अब वकील एक और एरिया से है जो लाखों रुपए की फीसों के साथ वकला के खर्चे, पेशियों पे आने जाने के खर्चे, उनके घरों के खर्चे, उनके ऑपरेशन के खर्चे, शोहदा की फैमिलीज़ के खर्चे, जितने अखराजात करोड़ों नहीं अरबों रुपए में इन मुतासरा लोगों पर मिनहाजुल कुरान और डॉक्टर ताहिर कादरी ने किए हैं। कारकुनान की कुर्बानियाँ अपनी जगह पे हैं, मगर जमात की कुर्बानियाँ उनसे भी कई गुना ज़्यादा हैं। और हम मुतमईन हैं कि जमात हर वक्त साथ खड़ी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी मुश्किलात आसान करेगा, जल्द मेरिट पर फैसला होगा, रिहाई होगी। मगर एक बात बड़ी हकीकत है कि ये निज़ाम अशराफिया का मुहाफ़िज़ है, ये निज़ाम ताकतवर का मुहाफ़िज़ है। ताकतवर को 50 रुपए के स्टाम्प पर भी बाहर भेज दिया जाता है, और गरीब को ठुड्डे मार मार के वो शहीद हो जाए, वो ज़िबा हो जाए या कत्ल हो जाए। एक मजलूम माँ वो ये कहने पे मजबूर थी कि मेरे बेटा कत्ल हुआ, मुझे कातिलों का इल्म है, मगर मेरी बेटी जवान है, इसलिए मैं बताना नहीं चाहती कि मेरी बेटी अगवा हो जाएगी। इस मुल्क के अंदर अशराफिया का इतना कब्जा है और आइन और कानून इतना मुअत्तल है, और हमारा पार्लियामेंट, हमारी पार्लियामेंट के साथ उनकी पूरी मुकन्नना सेनेट और उनकी पूरी टीम लेजिस्लेशन में और आइन कानून की इम्प्लीमेंशन में इतनी निखट्टू हो गई है कि जहाँ इंसाफ नाम की कोई शय नहीं है। मगर हम पुरुमीद हैं, हम डटे हुए हैं, हक की खातिर लड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो हक की राह दी है, इनकलाब की राह दी है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें शऊर अता किया है कि हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिही का मिशन है। वलौला दफ़उल्लाहि अन्नास बअदहुम बिबअद का मिशन है। ये जो मिशन अशिद्दा अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम का मिशन है। वक़ातिलुहुम हत्ता ला तकूना फितना व यकूना दीनु कुल्लुहु लिल्लाह का फितना है। निज़ाम है, हक़ की प्लानिंग है। इस जुल्म के फितने के खिलाफ ये कुरानी
मिशन और शऊर के तहत हक का काफिला बढ़ता रहेगा। पहला कदम भी कामयाबी है, आखिरी कदम भी कामयाबी है। मायूस नहीं है, परेशान नहीं है। रब ने भी ऐलान किया वला ताहनु वला तहज़नु वांतुमुल आलौन, न हिम्मत हारो न गमज़दा हो। आगे बढ़ते रहो, मंजिल मिल के रहेगी। इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम अपनी जिद्दोजहद में सादिक हो, जिद्दोजहद में सच्चे हो। हम मुतमईन हैं, हमारी क़यादत अल्हम्दुलिल्लाह ताला वो कारकुनान के साथ खड़ी है, हक की खातिर जंग लड़ रहे हैं। इंशाअल्लाह ये असीरान भी मेरिट पर रिहा होंगे और हक की खातिर ये जमात अपना सफर जारी रखेगी। की बात की है, असीरान जेल में मौजूद हैं। असीरान की फैमिली को कितनी मुश्किलात हैं। वो वीकली या 15 दिन के बाद उनसे मुलाकात के लिए जाते हैं, उनके अखराजात हो रहे हैं। उनके फैमिली जो हैं वो अस्पताल में कोई बीमार हैं, उनके अखराजात हो रहे हैं। उनको भी किसी ने कोई सपोर्ट कर रहा है, हर लिहाज से सपोर्ट किया जा रहा है। घरों को भी सपोर्ट किया जा रहा है, उनके असीरान जो बीमार हैं उनको भी सपोर्ट किया जा रहा है। जमात अपनी ताकत से भी बढ़ के कर रही है और इंशाअल्लाह ताला ये जमात का अपने कारकुनान के साथ जो वफा का रिश्ता है, इसको दुनिया की कोई ताकत कमज़ोर नहीं कर सकती। ये इंशाअल्लाह चलता रहेगा। इस कौम की गैरत, इस कौम की शऊर की खिड़की पे दस्तक जो डॉक्टर तैयब कादरी ने दी थी, अब भी वो हम मुंतज़िर हैं। आज भी अगर कौम बाहर निकले और रब के फरमान, उल्लूही फरमान के मुताबिक, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम, जब तक कोई अपने अंदर तब्दीली नहीं लाएगा, रब फरमा रहा है मैं भी तब्दीली नहीं दूंगा। कौम आज भी निकले, इनकलाब आएगा। लोग हमें कहते हैं आप निकले थे, हक की खातिर निकले थे या जिसके लिए भी निकले थे, मंजिल तो नहीं मिली, मुश्किलात आई। भाई हम कहते हैं निकले थे, बेगैरती नहीं की थी। इस सूद के, जुल्म के, करप्शन के, रिश्वत के, हराम के निज़ाम से समझौता नहीं किया था। हक की खातिर निकले थे, मंजिल नहीं मिली तो क्या हुआ हमारा निकलना। वो कहते हैं कि गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में। वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के पास चले। जो घर अपने घुटनों पे बच्चा घिसट रहा है, उसने क्या गिरना है, वो तो पहले ज़मीन पे है। गिरेगा वही जो शाह सवार घुड़सवार बनेगा, मैदान में निकलेगा, बातिल से लड़ेगा, टकराएगा। हम निकले, लड़े, टकराए। जो इस जुल्म के निज़ाम से समझौता किए हुए हैं, हम उनकी तरह बेगैरत और बेहिस नहीं हुए। हम मुतमईन हैं, हमारा ज़मीर मुतमईन है। जब भी क़यादत ने पुकारा इंशाअल्लाह हम सर बकाफाएंगे और हक की खातिर लड़ते रहेंगे। अपने खून के आखिरी कतरे तक और आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे, क्योंकि इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन का हमें ये पैगाम है और उनकी तरफ से हमें ये पैगाम मिला है कि हक की खातिर लड़ते रहो, कट जाओ, मर जाओ, तुम्हारा सर नेज़े पे भी सवार हो जाए तब भी बातिल से समझौता न करो। चढ़ जाए कट के सर तेरा नेज़े की नोक पर, लेकिन यजीदियों की ताअत न कर कबूल। इंशाअल्लाह हम निकले हैं, लड़ते रहेंगे। और आज ये जो सवालात कर रहे थे, ये हमारी कलूर कोट और जंडावाला की क़यादत, जो हम लाहौर से वापसी पर इनके साथ मीटिंग और मुलाकात हुई, उनके सवालात भी हक बजाने में कि वो मजलूम, मजबूर, गरीब कारकुनान, उनका क्या कसूर है। मगर ये जुल्म का निज़ाम कसूर ये देखता है कि उनका अमन कसूर है, उनकी गुर्बत कसूर है, उनका बदमाश न होना कसूर है, मुल्क को कौम को न लूटना कसूर है। ये उनके कसूर है जिनकी उन्हें सज़ा मिल रही है। इंशाअल्लाह जल्द मेरिट पर वो रिहा होंगे। इंशाअल्लाह ताला ये हक का काफिला बढ़ता रहेगा, जुल्म के निज़ाम का खात्मा होगा, हक फतयाब होगा। इनकलाब 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 इनकलाब।